Hi. So the next session for FRA will be financial reporting standards, where we'll be learning about आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए, उनको रेगुलराइज कौन कर रहा है, उनके बॉडीज कौन कौन से हैं, कौन बना रहा है, कौन वाउच करता है, और what are the characteristics that one financial statement should have, that one should look at, right? So first up is why do we even prepare financial reports, right? So financial reporting के कुछ objectives हैं. There are three objectives primarily. The first one is reasonable estimates and assumptions. Since financial reporting is filled with estimates and assumptions, it's only prudent to make some guidelines कि भाई आप इससे आगे या इससे ज्यादा या इससे कम एस्टिमेट या assumption नहीं लगा सकते, right? So there are certain guidelines as to estimates and assumptions which financial reporting provides. And then second and one of the most important objective is uniformity within the firm and between the firms across periods. एक जो कंपनी है दूसरे कंपनी के साथ भी कंपेरेबल होनी चाहिए, एंड अक्रॉस पीरियड खुद के कंपनी के लास्ट ईयर के जो नंबर्स है उनसे भी कंपेरेबल होनी चाहिए, राइट? सो इंट्रा फर्म कंपैरिजन एंड इंटर फर्म कंपैरिजन शुड बी पॉसिबल, एंड हेंस to have that uniformity we make financial reports. And the third one is they provide the input for valuation process, right? Valuation is one of the most important concepts of CFA, and वहाँ पे हम समझेंगे how financial reporting standards help us to determine what process will be followed in valuation, right? So these are the objectives of financial reporting. Now let's understand who makes financial reporting standards. So there are two bodies. One is Financial Accounting Standards Board and the other one is International Accounting Standards Board. Financial Accounting Standard Board US में GAAP बनाती है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो कौन बनाता है? वो FASB बनाता है, राइट? दैट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर US ओनली, राइट? गैप दूसरे नेशंस में भी फॉलो हो सकता है बट इट इज नॉट रेगुलराइज दैट वे. वेयरएज बाकी कंट्री में ग्लोबली क्या चलता है? ग्लोबली चलता है IFRS, राइट? वो कौन बना रहा है? IFRS बना रहा है IASB, विच इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, राइट? सो FASB बना रहा है गैप, बट वो एप्लीकेबल कहां है? US में. आउटसाइड द US IASB बना रहा है IFRS. IFRS एंड गैप आर टू अकाउंटिंग रिपोर्टिंग मेथड्स, राइट? उनको हम मेथड्स बोल सकते हैं कि कुछ ये स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ ये स्टैंडर्ड्स हैं, आपको कौन से फॉलो करने हैं, दैट डिपेंड्स ऑन वेयर द कंपनी लाइज. देन मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि यूएस में SEC है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन. उसके हिसाब से देयर आर सर्टेन फॉर्म्स that are required to be filed, right? There are certain forms that are required by a company to be filed with SEC. हम थोड़े फॉर्म्स यहाँ पे जो लिख रखे हैं उनको समझ लेते हैं. फॉर्म S1 is when a company wants to issue new securities, new equity अगर issue करना है तो. 10K, like previous session I told you, 10K is for annual reports, 10Q is for quarterly reports, and 8K is for M&A transactions. अगर आप कुछ एक्वायर कर रहे हो या अपने एसेट्स डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, यू फाइल 10 फॉर्म 8K विद द SEC. देन देयर इज डे 14A 144 एंड 345. ये सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है. डे 14A इज रिलेटेड टू प्रॉक्सी स्टेटमेंट्स. प्रॉक्सी स्टेटमेंट इज बेसिकली जब भी आपको एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, यू वांट टू हैव ऑल योर शेयर होल्डर्स विथ यू, तो आप एक प्रॉक्सी स्टेटमेंट भेजते हो. अगर वो शेयर होल्डर नहीं आ सकता है तो उसके बदले में कोई और आ पाएगा. सो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो फाइल्ड विथ SEC इन फॉर्म 14A. सिमिलरली देयर इज 144. दिस इज ऑल्सो पर्टेनिंग टू इशू ऑफ शेयर्स. जब इशू ऑफ शेयर्स करना है बट आपको अगर एक क्वालिफाइड इन्वेस्टर को देना है तो 144 लगता है. एंड 345 इज for when there is transaction related to
the management or the board. ठीक है, so these are the forms that are required to be filed with SEC. Then there are some required reporting elements, right? कि कोई भी अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहा है, अगर एनुअल रिपोर्ट्स बना रहा है, these things should be present in that financial report. What are those? Assets, liabilities, equity, income and expenses. All of those are very self-explanatory, but let me explain it. Assets क्या होते हैं? वो resources जो आपको further प्रॉफिट कमा के देंगे, आपको जो इनकम कमा के देने वाले हैं. लायबिलिटीज जो आपने आज इनकर किया है टू फंड योर ऑपरेशंस, लोन लिया है टू फंड योर ऑपरेशंस, बट यू विल नीड टू पे बैक, राइट? तो इट इज एसेंशियली एन ऑब्लिगेशन. इक्विटी नेट एसेट्स बोल सकते हैं, जो भी फंड आपको बाहर से नहीं मिला है और जितना आपको एसेट चाहिए, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करोगे तो यू विल गेट द इक्विटी दैट इज रिक्वायर्ड टू बी pulled in by the owners of the company. Income basically जो भी pluses हुए हैं profits में, जो भी that are called income, and all those minuses in the resources or minuses in your income is called expenses. अब ये जो elements है, 5 elements that we talked about, all of those are measured and inputted in our financial statements. So कब इनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उन पे भी विल बी अंडरस्टैंडिंग इट इन द कमिंग सेशन. आप अभी ये समझ लो कि अगर किसी भी चीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनपुट करना है, यू नीड टू हैव 2 थिंग्स. दे शुड हैव प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स एंड दे शुड बी एबल टू बी मेजर्ड रिलायबली. ठीक है, उनको रिलायबली मेजर कर पा रहे हो और प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स हैं तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो. अब अगर एसेट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो किस वैल्यू पे करना है? देयर आर सर्टेन 6 मेजरमेंट बेसिस दैट यू कैन टेक. ठीक है, अब कौन से एसेट के लिए कौन सा बेस लगेगा, दैट आर आल्सो मेंशन्ड इन द स्टैंडर्ड्स, बट अभी के लिए आप ये समझो कि हमको ये समझना है व्हाट आर द मेजरमेंट बेसिस. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस 6 मेजरमेंट बेसिस. फर्स्ट अप इज हिस्टोरिकल वैल्यू. जिस वैल्यू पे लिया था वही वैल्यू अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल वैल्यू. द वैल्यू एट विच द एसेट वाज ओरिजिनली बॉट. amortized cost is basically historical cost minus depreciation, amortization, कुछ भी अगर उसमें वेयर एंड टेयर की वजह से आपने माइनस किया है, उसके बाद जो वैल्यू आई है उसको amortized cost बोलते हैं. देन देयर इज करंट कॉस्ट. करंट कॉस्ट मीन्स अगर आज आप वो एसेट, जिस एसेट जो हाल में है, वो एसेट अगर बाहर से खरीदने जाओगे तो कितना पैसा लग जाएगा. इफ यू गो एंड बाय दैट एसेट इन द मार्केट टुडे, हाउ मच वैल्यू विल इट कॉस्ट यू, राइट? नेक्स्ट इज एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलता है आज जो एसेट है वो मैं बाहर मार्केट में जाके बेचूं तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा, minus any selling cost that I might incur. So selling value minus any cost. मान लो मेरे पास फ्रिज है, वो मेरे एसेट साइड पे दिख रही है, I want to sell off that asset in the market. So मैं जाता हूँ, रेफ्रिजरेटर का भाव मेरे को पता चला it is worth 10,000 rupees, but I will need to incur a 1,000 rupee transportation cost in order to sell it. So my NRV will be 10,000 minus 1,000. The NRV will be 9,000, right? Present value क्या होता है? Present value is the आज वो भाव, वो value that is discounted of all the future benefit that asset will give me. एक asset जो है वो फ्यूचर में जो भी मेरे को बेनिफिट देने वाली है, उसको अगर मैं आज डिस्काउंट करके लाऊं तो वो जो वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू. इट इज बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ all the future benefits that asset will give me, right? And last one is fair value. Fair value is आज अगर वो एसेट को मैं जाके बाहर बेचूं तो कितने में बिक जाएगा. सो एनआरवी में जो सेलिंग वैल्यू था इसको हम बोल सकते हैं फेयर वैल्यू, राइट? एनआरवी में से सेलिंग कॉस्ट माइनस हो जाता है, फेयर वैल्यू में से सेलिंग कॉस्ट माइनस नहीं होता है. फेयर वैल्यू बेसिकली मीन्स आज अगर मैं ये जो चीज है, जो एसेट है, उसको बाहर जाके बेचूंगा तो कितना फेच करेगा.
So I hope you are cleared with all the measurement basis: historical cost, amortized cost, current value, NRV, present value and fair value. ठीक है. Next up is fundamental characteristics. मेरे अकाउंट्स में, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? What should they ideally have? There is two fundamental characteristics that they must possess. One is relevance and the other one is faithful representation. Relevance क्या होता है? मतलब अगर कोई इन्वेस्टर पढ़ रहा है तो उसके लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, व्हाट दे वांट टू डिड्यूस आउट ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर कोई क्रेडिटर पढ़ रहा है तो उसके लिए भी कुछ पर्पस होना चाहिए, उसके लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए. इफ माय एम्प्लॉय इज रीडिंग माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देयर शुड बी सम डिडक्शन फॉर देम ऑल्सो. सो रिलेवेंस बेसिकली मीन जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ने वाले हैं, जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने वाले हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए. आपने कुछ भी हवा में बात कर दी तो इट वुडंट बी रिलेवेंट टू देम, राइट? सो माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड आइडियली हैव सम रिलेवेंस टू इट. सेकेंड पॉइंट इज फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या? मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दैट शुड बी कंप्लीट, अरीड ऑफ एनी बायसेस, मतलब उसमें कुछ भी बायस नहीं आना चाहिए, एंड इट शुड बी अरीड ऑफ एनी मिस रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, उसमें कहीं पे भी कुछ गलत बातें नहीं लिखी होनी चाहिए. सो इट शुड बी कंप्लीट, अरीड ऑफ एनी बायसेस, कुछ भी बायसेस नहीं होने चाहिए, एंड इट शुड नॉट हैव एनी मिस स्टेटमेंट. अब अगर हमको मेंटेन करना है ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स, then we must enhance them by following some 4 other characteristics. अगर आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स ये मेंटेन करने हैं तो आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए? There are 4 characteristics that you can lay emphasis on. First one is comparability. Comparability जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था यूनिफॉर्मिटी में, सिमिलर इज द केस. कंपैरेबिलिटी क्या होनी चाहिए? विद इन फर्म, मतलब मैं अक्रॉस पीरियड अगर देखना चाह रहा हूं, मेरे लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट था, इट शुड ऑल्सो होल्ड सिमिलर इंफॉर्मेशन एज टूडेज बैलेंस शीट. एंड सिमिलरली इफ आई वांट टू कंपेयर माय फर्म्स बैलेंस शीट विथ पीयर ग्रुप्स, मेरे जो रिलेटेड फर्म्स हैं उनके साथ भी वो कंपेरेबल होना चाहिए, राइट? सो इफ माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंपेरेबल विद इन फर्म्स, across firms and across time periods, then I am good to go. Second one is verifiability. Verifiability मतलब क्या? जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो उसमें कुछ भी मिस स्टेटमेंट नहीं है, एंड देयर आर नो ओमिशंस, राइट? ऑल द इंफॉर्मेशन इज वेरीफाइबल. देन टाइमलीनेस, अगर कोई इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी वो आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट में बता दिया जाना चाहिए था, और वो स्टेटमेंट एनुअल में, जब एनुअल स्टेटमेंट आया तब बताया गया है, देन इट डजंट मेक सेंस. यू कुड हैव टेकन अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट मटेरियल इंफॉर्मेशन एट दैट पॉइंट इन टाइम. अगर वो बाद में इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसका रेलेवेंस खत्म हो जाता है. सो इफ यू वांट टू मेंटेन रेलेवेंस, इट शुड बी टाइमली, राइट? तो वो सारे इंफॉर्मेशन आपको क्या क्वार्टरली रिजल्ट्स में ही मिल जाना चाहिए था. सो टाइमलीनेस बेसिकली मीन जो भी चीजें आप बता सको और जितने प्रॉम्प्टली बता सको बता देना चाहिए. एंड द फोर्थ पॉइंट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी. योर इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, अदर स्टेक होल्डर्स all should be able to read your financial statements and deduce the information that they want, right? अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है, if the whole statement is full of jargons or full of statements or full of numbers that doesn't make sense, तो आपका जो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का पर्पस है वो डिफीट हो जाता है, राइट? सो इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू ऑल द स्टेक होल्डर्स. सो दोज आर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दो थे, रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन. And to maintain them, we will be following 4 other characteristics, which is comparability, verifiability, timeliness and understandability. So ये सब चीजें बताई गई थी. फिर IFRS आया और IFRS ने अपने खुद के कुछ चीजें बताई कि ये सब तो ठीक है, बट मैं जैसा बता रहा हूं वो भी होना चाहिए if you are outside US, right? So if someone is following IFRS,
देयर आर सर्टेन 9 प्रिंसिपल्स दैट दे नीड टू फॉलो। सबसे पहले तो उन्होंने कुछ रिक्वायर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बता दिए विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट सेशन। बैलेंस शीट होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होना चाहिए एंड एक्सप्लेनरी नोट्स होने चाहिए विच हैज समरी ऑफ ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड। दिस वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, राइट। ये सब चीजें होनी चाहिए। इट इज मैंडेटेड बाय IFRS। अगर कोई कंपनी IFRS फॉलो कर रही है तो ये 5 स्टेटमेंट तो उनको बताना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। और ये जो 5 स्टेटमेंट्स हैं वो इन 9 प्रिंसिपल्स को फॉलो करनी चाहिए। 9 प्रिंसिपल्स या फिर मान लो ये 9 चीजें हैं जो IFRS बोलता है अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड हैव। फर्स्ट अप इज फेयर प्रेजेंटेशन। फेयर प्रेजेंटेशन इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो शुड बी अरेड ऑफ एनी बायसेस, शुड बी कंप्लीट, मिस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल लगना चाहिए। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल मतलब अनलेस द मैनेजमेंट वांट टू लिक्विडेट इन द फोर्सेबल फ्यूचर, हमको तो ये लगना चाहिए कि कंपनी चलते रहने वाली है। If I am seeing the company's accounts today, I should be of the opinion that this company will go on to live forever, right? At least for the unforeseeable future. अगर वो नहीं है, वो प्रिंसिपल नहीं फॉलो हो रहा है, then it should have a disclaimer. साफ साफ बता दिया जाना चाहिए कि वो कंपनी गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रही है। थर्ड इज अक्रूअल प्रिंसिपल। अक्रूअल बेसिकली मीन्स हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं दोज आर ऑल पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स, राइट। अगर उस पीरियड से रिलेटेड कुछ भी लेन देन हुआ है, एवरी इनकम एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू दैट पीरियड ऑफ टाइम ऑल विल बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कैश आया है या नहीं, राइट। सो एक होता है कैश अकाउंटिंग, एक होता है अक्रूअल अकाउंटिंग। IFRS says that you should be following an accrual basis of accounting, ठीक है। मतलब irrespective of कैश आया है कि नहीं, आपका अगर वो पीरियड से रिलेटेड कोई भी इनकम या एक्सपेंस है that should be shown in the books of accounts. Next is consistency. Consistency as in आप जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे थे, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे, वो ईयर ऑन ईयर सेम रहने चाहिए। इफ दे आर नॉट सिमिलर और वो अलाउड है अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से, यू शुड हैव अ डिस्क्लेमर टू दैट ऑल्सो। फिफ्थ पॉइंट इज मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या बोलता है? ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप अगर कोई भी इमटेरियल इंफॉर्मेशन है विच इज आपने अगर ₹2 का कुछ खरीदा है इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्थ $200 million, it doesn't make sense to show that account, right? So that can be clubbed together with something else. So all the material information should be shown in your books of accounts and not the immaterial ones. All the immaterial information can be clubbed together to make this principle which is aggregation. Aggregation क्या बोलता है? कोई भी चीजें जो सिमिलर हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको आप क्लब टुगेदर कर दो और कुछ भी अगर डिसिमिलर इंफॉर्मेशन है उनको आप सेपरेटली दिखाओ। सो प्रिंसिपल ऑफ एग्रीगेशन इज सिमिलर आइटम्स शुड बी क्लब्ड टुगेदर। सेवेंथ क्या है? सेवेंथ पॉइंट इज नो ऑफसेटिंग। बेसिकली अगर कोई एसेट है आपके पास और उससे रिलेटेड कोई लायबिलिटी है, दैट एसेट एंड लायबिलिटी शुड बी सेपरेटली शोन एंड नॉट क्लब टुगेदर और ऑफसेटेड टुगेदर। ऐसा नहीं कर सकते कि एसेट माइनस लायबिलिटी कर दो और ये फिगर मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा देता हूं, नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव separate asset for that cost and separate liability for that item, right? 8th point is frequency. IFRS बोलता है at least annually you should be coming out with your financial statements. So frequency वो define करता है कि annually आपको एक बार तो financial statement बनाना ही है। And the last point is comparative information. Comparative information मतलब मैंने जो information दिखाई है that should be comparable with that of other across time and among firms, ठीक है, वो comparative information है। So I hope all this is clear to you. Next session में अपने एक full fledged
चालू करेंगे वेयर विल बी डेल्विंग डीपर इनटू इनकम रिकॉग्निशन एंड ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स. थैंक यू.